Assalamu alaikum wa namaste, sat sri akal everybody. They're watching Kashur Scientist. This is your host Muhammad Salman. We are here with another lecture of the What series. We have already gone through what are different properties of subatomic particles, what are different models of atom, in which we described Rutherford's model, then Bohr's model, then Rose-Thompson's model. And from all those models, we have created a base of how exactly an atom would look like and how should it behave in different scenarios. As of we talked, there are three main subatomic particles, or there are only three subatomic particles of which we take into consideration. It's electrons, neutrons, and protons. And on examining the different characteristics or different properties of those subatomic particles, we can assign different scenarios or different set of properties to the whole atom. And on describing the various models of atom, we got to know how actually these subatomic particles are placed in an atom, what is their orientation. As we got to know the nucleus, there's a nucleus by Rutherford's model, and from Bohr's model we got to know the atoms revolve around the electrons revolve around the nucleus. And then we got to know the whole mass of the atom is concentric in the it's approximately the whole mass, because the mass of electrons is very less as compared to that of the protons and neutrons. And the whole mass of an atom is confined to the nucleus only, where and the size of nucleus is very less as compared to size of the whole atom. After going through all these lectures and having discussion on all those things, we are finally at the stage where we should be discussing what is the distribution of the electrons, like how electrons are placed in an atom, what is their configuration. If we talk of an excited state, what is an excited state. If we want to represent an element, if you must have seen the periodic table and you must have gone through different representations of the elements, you must have seen there are different numbers assigned at different locations, and you must be wondering what are those numbers. In this lecture we will be discussing what actually how those numbers are assigned, what is the significance of those numbers, what does that number mean if an element is having an representation, or if an element is assigned with a symbol of x, what does that mean if it's having if there is some number at its right corner or left corner or in center, what are the meanings of those numbers, those assigned values, and how would that help us in examining any scenario or in getting knowledge about any particular thing about an atom. So first foremost we will discuss actually the electron distribution. I am extremely sorry because of the setup conditions. The video stuff is not good and there is some external noise also. I'm sorry for this because I have to record this lecture in emergency. There is some scenario with it that I can't disclose. But I'm extremely sorry for the noise and the video quality. You would have to compromise for this for today. Inshallah, in upcoming videos, we will try to maintain our quality. We will try to go back with what we were going earlier, and we will try to discuss all the things in much detail and in a well planned and well prepared manner. But for today, you will have to compromise. So finally, if we talk of electron distribution, if we talk of electron distribution, the first thing I have mentioned here is valency, and the other thing is orbits. When we were discussing the Rutherford's model, or from Rutherford's model, we got to know about the nucleus, and from that, when we went on to Bohr's model, in Bohr's model, we described the electrons are revolving around the nucleus, and how these electrons are revolving around the nucleus.
and why they only chose a single, why they only chose a particular part revolve around the nucleus, why not they move in a haphazard manner. As like you must be thinking of why they only choose for a minute this kind of radius, why should not that electron move in somewhat this elliptical path, why should not that move in somewhat this path, why only this path. There's a reason about this. You must have heard of angular momentum, or for now you just think of momentum, or you just think of stability, or you just think of energy. It tries to choose a path which has the least energy, in which it can be stable, in which uh, this is the path of this electron which is near to the nucleus, and in this path is most stable. And if it will revolve around this path, it will be in its most stable condition, through which it will be orbiting this whole nucleus. And same happens with other nuclei and other orbits also. When we talk of these orbits, these are the places around the nucleus through which an electron, through which an electron revolves, through which an electron tends to have its motion, for the sake, as it has to revolve around the nucleus, for the sake to maintain stability of the atom, to maintain stability and to complete its motion. This is the case. But what is valency and what are orbits? If we talk of an atom, if we talk of an atom, there are three subatomic particles. One is electron, other is neutron, and another is proton. As we have talked of, electron is negatively charged, proton is positively charged, and neutron is neutral. When we talk of neutron and proton, they form the nucleus of the atom, and when we talk of electrons, they revolve around the orbits. So, how many electrons are there which occur in the outermost shell? What is exactly an outermost shell? तो मैं जानता हूँ जितने भी मेरे एटम्स होते हैं उनकी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वैलेंसी क्या होती है। तो मैं बोलता हूँ मेरे जो एटम्स है उसमें कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैं बोलता हूँ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है दे गॉट कन्फाइंड टू द न्यूक्लियस ओनली। अब मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इन शेल्स में घूमेंगे, ठीक है। बट ये जो मेरी शेल्स है ना, एक ही शेल में जस्ट लाइक न्यूक्लियस में सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आ गए, ये जो शेल्स है ना इनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स एट अ टाइम नहीं आ सकते, बिकॉज अपनी एनर्जी लेवल है हर किसी सिस्टम की, और अपनी कुछ वैलिडेशन पॉइंट्स है। तो उसके हिसाब से क्या होता है, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ये डिफरेंट शेल्स में जाते हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियस के नज़दीक एक आ गया और एक आ गया और एक आ गया और एक आ गया, और इन शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है हमारे पास के एल एम एन, ये जो नाम है ये हमने शेल्स को दिए हैं, मतलब जो जस्ट हमारा न्यूक्लियस है उसके पास होगी उसको हम के बोलते हैं, जो उसके बाद होगी उसको हम एल बोलते हैं, जो उसके बाद होगी उसको हम एन बोलते हैं, एम बोलते हैं, जो उसके बाद होगी उसको हम एन बोलते हैं। और एक शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसको डिनोट करते हैं 2n² के नंबर से। मेरे पास फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 1, यानी कि पहली शेल है तो पहली शेल में आएगा 2 × 1, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब मेरी दूसरी शेल है 2 × 2 यानी कि 8 बन जाएगा मेरा, तो मेरी दूसरी शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसी तरीके से 2 × 3 वो 18 आएगा। इसी तरीके से 2 × 4 वो 32 आएगा। तो मेरी पहली शेल में जो है दो के शेल जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जो मेरी एल शेल है इसमें मेरे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जो मेरी एम शेल है उसमें मेरे 18 आ सकते हैं। इसी तरीके से एन जो है उसमें से हमारे जो है
क्या बोलते हैं उसको, बाकी 32 आ सकते हैं। बट अब आप बोलोगे कि क्या ये हर किसी एटम में ऐसा ही होता है? हाँ, हर किसी एटम में ऐसा होता है। बट क्या होता है, हर किसी एटम के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो उसकी सारी शेल्स फिल करे। अब अगर 2 होंगे तो वो के में ही जाएंगे, अगर 10 होंगे तो के और एल में जाएंगे। अब अगर 9 ही हुए तो क्या होगा? तो जब 9 ही होंगे ना, ये दो के वाले दो फिलअप होंगे, और जो 7 है वो 7 इसमें रहेंगे, एल में रहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर क्या हो गया, अगर आप बिटवीन 9 to 18 हो गए तो वो तीसरी वाली शेल में एग्जिस्ट करेंगे। मतलब कहने का मतलब है, पहली एनर्जी लेवल जो है उसको फिलअप करने की कोशिश करेंगे। जब के सारी फिल हो गई, अब एल में उतने फिल होते जाएंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इतने हैं कि वो सारी फिल होंगी तो अगली वाली पे जंप करेगी, अगली वाली फिलअप होंगे। अगर नहीं है तो सीधे इसी पे चली जाएंगे। तो जो मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वहाँ पे मेरा शेल्स का जो जो मेरा न्यूक्लियस है, उसके पहली वाली शेल जो है उसमें 2 जाते हैं, उसके बाद वाली जो है उसमें 8 जाते हैं, उसके बाद वाली जो है उसमें 18 जाते हैं, और उसके बाद वाली जो है उसमें 32 जाते हैं। इस तरीके से हमारे जो है एटम्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिलअप होते हैं। और इनका जो फिलअप होना है ना, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मतलब के में कितने आ गए, एल में कितने आ गए, एम में कितने आ गए। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा मेरी जो के शेल है उसमें 2 आ गए, और जो मेरी एल शेल है उसमें क्या है, उसमें मान के चलो अब 6 ही आ गए। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, वो लिखेंगे 2,6, ठीक है। मेरी 2 इसमें, जब मैं पढ़ूंगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं बोलूँगा इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं लिखूंगा 2,8,6, यानी कि मैं बोलूँगा इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है एन है, ठीक है। अब क्या होता है, जब आप थोड़ा आगे जाएंगे ना, आप जानेंगे जो शेल होती है ना उसके अंदर और उनको बोलते हैं सब शेल्स। उसके अंदर और चीज़ें होती हैं, उनके अदर सब शेल्स होते हैं, उसके अंदर और एक चीज़ें होती हैं, उनको ऑर्बिटल्स कहते हैं। फाइनली जो हमारा एक एनर्जी स्टेट होती है ना, वो इसी ऑर्बिट में होती है। एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टे करते हैं। एक का स्पिन पॉजिटिव होता है, यानी कि अपवर्ड्स होता है, दूसरे का स्पिन नेगेटिव होता है, ठीक। इंशाल्लाह जब आप क्लास 11th में जाओगे तो आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे, तो आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे। सॉरी, क्यों मैं मोमेंट। तो आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे कि ये जो है इनकी जो सब शेल है उनकी कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होती है। तो अभी तक जो है आपको कंसेप्ट आया कि हम इलेक्ट्रॉन्स को है कैसे शेल्स में भरते हैं। अब और एक चीज़ होता है, और एक काम होता है, वो क्या होता है कि मैंने जो इलेक्ट्रॉन्स भरे, अब जो मेरा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होगा ना, फॉर एग्जांपल मेरी जो है इसमें शेल मैंने 2,6 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखी, ठीक है। 3, 4, 5, 6। तो मेरी जो इस वक्त जो मेरी आउटर मोस्ट शेल है ना, वो यही वाली बनेगी। क्यों? क्योंकि इसके बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मेरी आउटर मोस्ट शेल जो है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको मैं वैलेंसी बोलता हूँ। तो मैं बोलूँगा आपको इसकी वैलेंसी कितनी है, तो आप बोलोगे 6। क्यों? क्यों मैं बोलूँगा मेरे आउटर मोस्ट शेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको मैं उसकी वैलेंसी बोलूँगा। आगे आप देखोगे जब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मेटल्स एंड कंसेप्ट ऑफ नॉन मेटल्स, कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो हम देखते हैं ये जो 6 है ना, 6 के 6 नहीं निकल पाते हैं, कुछ लेवल तक निकल पाते हैं, 2 निकल पाते हैं, या 3 निकल पाते हैं, या 4 निकल पाते हैं। डिपेंड करता है जो ऑर्बिटल्स है उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है। जब आप वो सारी समझ पाओगे तो बैलेंसिंग का फैक्टर ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होता है। इस वक्त हम मान के चलेंगे जो हमारी आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है जो वहाँ पे अभी प्रेजेंट है, उसको हम उसकी वैलेंसी बोलेंगे। तो अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है, यही वो इलेक्ट्रॉन्स है जो किसी स्पीशीज के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, जो कोई बॉन्ड बना सकते हैं, चाहे कोवेलेंट हो, चाहे आयनिक हो, चाहे शेयर हो, चाहे लॉस और गेन हो। तो ये जो हमारा वैलेंसी है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी हमारे एटम के लिए। यही डिपेंड करता है कि मेरा जो एटम है उसकी रिएक्शन का हिसाब क्या होगा। यही डिफाइन करता है कि मेरे बॉन्ड्स कैसे बनेंगे। ये क्या आउटर मोस्ट शेल है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा मेरे पास एक महल है, ठीक है। अंदर जो है बादशाह बैठा है, अंदर खजाना है, सब कुछ सिस्टम चल रहा है, और यहाँ पे जो है बाहर 4-5 सिपाही है, ठीक है।
और दीज आर द पीपल जो डिसाइड करेंगे कि महल में कोई आ सकता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मान के चलो ये जो चार सिपाही हैं, इन्होंने रिश्वत खाई, इन्होंने बोला कि हम दुश्मन को बाहर से एंटर करते हैं, लो वो अंदर जाएगा, तो ये सारा सिस्टम डिसरप्ट होगा किसकी वजह से, बट इन्हीं चार बंदों की वजह से। सिमिलरली जो हमारा एटम होता है उसमें क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं हमारे एटम की बाउंड्री, और उसी बाउंड्री से डिफाइन होता है कि हमारे एटम की रिएक्शंस क्या होंगी, हमारे एटम कौन सा किस किस्म का बॉन्ड बनाएगा, और बाकी डिफरेंट फिनोमेना। तो ये बात होती है वैलेंसी की। अब जो मैंने बोला था आपको अभी, दिस डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल्स एंड ऑर्बिट्स, जो ऑर्बिट्स होते हैं ना, यही हमारी शेल्स होते हैं, L M N, जिन स्पेसिफिक ये इनकी एनर्जी जो है फिक्स्ड होती है, और इन फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। जो आउटर मोस्ट शेल होती है जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिफाइन होती है, जो मेरी डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं उनमें मेरे इलेक्ट्रॉन्स कैसे आते हैं। जो सबसे कम एनर्जी होगा, जो सबसे क्या बोलते हैं इसको, जो सबसे कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल जो है फिलअप होते होंगे। अब क्या होता है, हमने काम किया, हमने कभी बोला, मैंने काम किया मैंने कभी बोला कि मैंने फॉर एग्जांपल एक्साइटेशन करा दी। एक्साइटेशन मतलब मैंने एनर्जी दे दी, मेरा जो एटम है, मैंने एटम को जो है एनर्जी दे दी। जब मैंने एटम को एनर्जी दे दी ना, उससे क्या होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयोनाइजेशन जिसको कहते हैं, आपने सुना होगा नाम। जब हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, हमने एनोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसमें हमने बोला था हम बहुत हाई टेम्परेचर देते हैं और बहुत कम प्रेशर करते हैं। ये कंडीशंस, जब ऐसी कंडीशंस, और बहुत ज़्यादा वोल्टेज देते हैं, जब हम ऐसी कंडीशंस लाते हैं ना, तो उनकी वजह से क्या होता है, जो एटम होता है उसका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस की तरफ से कुछ क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है नेगेटिव होता है, तो ड्यू टू दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है। बट मान के चलो इन दोनों में जो बॉन्ड था उसकी कुछ एनर्जी थी, बट उस आपने कुछ एनर्जी इतनी ज़्यादा दे दी कि उस एनर्जी से ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा ना। जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है इस न्यूक्लियस से, तो क्या होता है, तो फर्स्ट फॉर्मोस्ट ये सीधे बाहर नहीं जाता है, ये एक्साइट होता है। फॉर एग्जांपल इससे पहले जो था कि ये एल एल शेल में था, मेरे इलेक्ट्रॉन 6 ही थे, ये मतलब 6 ही थे, तो ये एल में था। अब इसको आपने एनर्जी दे दी ना, ये एम में जाएगा। अब उसको एनर्जी दे दी ना, ये एन में जाएगा। ये अपनी नई नई स्टेट्स लेता जाएगा, तब तक मतलब उतना ही, जब तक इसकी सारी शेल्स, अब मतलब उतनी एनर्जी नहीं दोगे ना, ये सारी शेल्स को थ्रेश होल्ड करेगा, तब तक ये इस न्यूक्लियस के चार्ज से बाहर नहीं निकलेगा। जब आपने उसको इतनी एनर्जी दे दी कि इसकी फाइनल मोस्ट जो शेल है उससे भी ज़्यादा एनर्जी दे दी, जो उस बॉन्ड को बना के बंद रखता है, उसके बाद जो काम करेगा ये इस न्यूक्लियस के फोर्स से जो है बाहर आ जाएगा। तो जो एक्साइटेशन होती है वो होती है कि जब हम अब हम एक्साइटेशन एनर्जी जो देते हैं ना, वो हम इतनी देते हैं कि वो के से एल में जाए, वो एल से एम में जाए, वो एम से एन में जाए, ताकि, और उससे क्या होता है ना, उससे जो है एक्साइटेशन एनर्जी जो है उससे क्या होता है, उससे जो जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेशन से डीएक्साइट करते हैं ना वापस, फॉर एग्जांपल एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एन शेल में होगा। अब क्या हो गया, उस डीएक्साइटेशन होगी, उसकी एनर्जी जो है कम होगी, वो इतनी कम होगी कि वो एम से एन में आ जाए। तो वो जब एम से एन में आता है ना, शिफ्ट करता है ना, तो वो कुछ रेडिएशंस या कुछ लाइट जो है बाहर फेंकता है। तो वो जो लाइट बाहर फेंकता है ना, उसकी वजह से हम उस एटम को जान पाते हैं, उसका स्पेक्ट्रा बताते हैं। एंड उस स्पेक्ट्रा की वजह से क्या है कि हम वो फ्रेंड, जस्ट लाइक हमारा एक फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, उसी तरीके से जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है वो हर किसी एटम का अपना यूनिक होता है। उसकी वजह से हम एक एटम को जान पाते हैं।
एक एलिमेंट को जान पाता है। तो सिमिलरली क्या होता है, ये सारी चीज़ें मतलब ये एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन उसी चीज़ का कंसेप्ट होता है। आपने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो इफेक्ट है जिसपे अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो है नोबेल प्राइज मिला। उसमें भी क्या होता है, ये आयनाइजेशन का कंसेप्ट होता है। इलेक्ट्रॉन्स को सुपर चार्ज किया जाता है, मतलब उन पे इतना ज़्यादा एनर्जी लगाई जाती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपना जो है ऑर्बिट छोड़ देते हैं, वो अपनी एनर्जी लेवल्स छोड़ देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन से बाहर आ जाते हैं और उसकी वजह से जो है मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने कंसेप्ट पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी का, वहाँ पे भी सेम थिंग होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी वैलेंसी से बाहर आ जाते हैं, अपनी शेल से वैलेंस बैंड से बाहर आ जाते हैं, मास फ्लो करते हैं, तो हमें क्या है एनर्जी मिलती है और हम डिफरेंट तरीके से चीज़ें जो समझ पाते हैं। इट वॉज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल। अब मेरे पास है मास नंबर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। देखो, मैं आपके पास जब भी पीरियोडिक टेबल आता होगा ना, आपने देखा होगा एलिमेंट जो होता है वो ऐसे होता है, उसके इधर कुछ लिखा होता है, इसके इधर कुछ लिखा होता है, और यहाँ पे आपको मिलेगा फॉर एग्जांपल 26.8994 ऐसा कुछ मिलेगा, छोटा नंबर। मैनी केसेस में ऐसा होता है। कहीं भी आपने देखा होगा उसके साइड में शेप्स भी बना के होती है। बट चाहे ये चीज़ हो, ये चीज़ हो, ये चीज़ हमेशा हर किसी में होती है। ये जो आप एल देखते हो ना, ये एल्यूमिनियम है, ये क्या होता है, ये मेरी रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी मेरे एलिमेंट्स हैं ना, उन एलिमेंट्स को मैं एक नाम दिया हूँ। नॉमेनक्लेचर जो है, एलिमेंट्स जब डिस्क्राइब हुए तो जो हमारा बोर्ड होता है इनको देने नाम देने का, तो उसने जो है एट दैट मोमेंट एट दैट टाइम, जब ये बहुत अर्ली डिस्कवर हुए थे, अब जो रिसेंट आते हैं उन जो डिस्कवर्ड है अनडिस्कवर्ड है, फाइनली जो हमारा एक एलिमेंट है उसको एक नाम दिया जाता है। तो नॉमेनक्लेचर इज मोर लाइकली कि इसको नाम दिया गया बोर्ड की तरफ से। तो ये जो चाहे यहाँ पे आपने कार्बन देखा होगा, आपने सोडियम देखा होगा, आपने कैल्शियम देखा होगा, तो ये जो CaNa, C है, के है, एन है, तो ये सारे जो रिप्रेजेंटेशंस होती है, ये मेरा रिप्रेजेंट करती है नाम। जो मेरा नेम है, नॉमेनक्लेचर है मेरे एलिमेंट का, वो ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे जो चीज़ आती है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। यहाँ पे जो चीज़ आती है ऊपर उसको बोलते हैं मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर होता है मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं लेते। हमने हमेशा बोला है जो हमारा एटम होगा ना, जो हमारा एलिमेंट होगा ना, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तभी तो हमारा जो है एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। इन जनरल स्टेट जो एग्जिस्ट करता है वो न्यूट्रल करता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं लेते। मैंने आपको अभी समझाया था बात किस चीज़ की, मैंने आपको ऑर्बिट्स की बात समझाई थी और वैलेंसी की बात समझाई थी। जो मेरा इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो हमेशा मेरी किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है। वो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होता है, वो वैलेंसी में इन्वॉल्व होता है, वो फॉर एग्जांपल लीव करने में इन्वॉल्व होता है, एक्साइटेशन डीएक्साइटेशन में इन्वॉल्व होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब भी बॉन्ड बनाना होगा, जब भी क्या बोलते हैं एक्साइटेशन करनी होगी, जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस करना होगा, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही लॉस होता है। जब भी कोई चीज़ लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन ही लॉस होता है। उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है ना वो कन्फाइन नहीं रहता है। वो गेन भी हो सकता है, वो कोई ले सकता है, कोई दे सकता है। जो लेता है वो देता है, उनकी वजह से फिर हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स का नाम देते हैं। उनकी वजह से हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का नाम देते हैं। वो सारे नाम पढ़ते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या, हाउ दे एक्चुअली बिहेव एंड हाउ दे रिएक्ट। इसी वजह से यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं लाते, यहाँ पे हम प्रोटॉन्स लाते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन्स का जो है नंबर वो सेम रहता है। प्रोटॉन्स जो है इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। अब जो 27 है ना, ये होता है मेरा A+Z। ये मेरा होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको यहाँ पे देखें, आपको बोलेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मुझे ये सवाल आता है, आपको बोलेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मुझे बोलो एल्युमिनियम में कितना होगा। आपको मास नंबर दे के आपने उससे माइनस किया 13, आप बोलो इससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है 14 है। 13 जो है एटॉमिक नंबर क्या होता है, इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। एंड 27 इज मास नंबर, इज टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। अब आपको इससे पहले मैंने जो पढ़ाई थी वो क्या पढ़ाई थी, मैंने पढ़ाई थी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो करते हैं हम सबसे पहले
जो हमारा एलिमेंट है उसकी रिप्रेजेंटेशन देते हैं। जब आपके एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन आ गई, आपको एल से पता चला गया इसका नाम जो है कुछ है, और आपने फिर जाना, आपको पता लग गया इसका नाम एल्यूमिनियम है। इस 13 से पता चल गया आपको इसका मास नंबर, इसका जो मास है वो 13 है, AMU है, यानी कि वो AMU इसका यूनिट आता है, मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट जो आता है। 13 से पता चल गया इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13 है। 27 से पता चल गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है 14 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है 13 है, टोटल मास जो है वो कितना है, क्या बोलते हैं इसको, टोटल मास जो है वो 27 AMU है। और 13 से क्या पता चल गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। अब आपने जो है, आपको ये पता चल गया प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं। अब अगर आपको इसके इलेक्ट्रॉन्स जानने होंगे, आपको जानना होगा ये मेटल है, नॉन मेटल है, ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड कैसे बनाता है, आयनिक बनाता है, कोवेलेंट बनाता है, वंडरवाल बनाता है, व्हाट्सएवर इसकी कॉन्फ़िगरेशंस कैसी रहती है, एक्साइटेशन में किधर जाता है, इसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है, उस सब के लिए आपको जो चीज़ जाननी होगी वो होगा इसका क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आप जानोगे कि इसका जो न्यूक्लियस है उसके आसपास एटम्स का जो है हिसाब कैसे रहता है। एज मैंने आपको बोला, इसकी जो एटॉमिक नंबर जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और आपको पता है जब एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप बोलूँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो आप क्या लिखोगे, 2 8 3 आएगा ना 13, तो आप बोलोगे KLM, इसकी वैलेंसी जो है वो 3 है, आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरीके से मैं आपको बोलूँ, आप लिखो फॉर एग्जांपल 10 वाले का, तो जब आप 10 वाले का लिखोगे वो लिखोगे 2, 8। अब ये जो 3 होता है ना, तो ये जो है कंटिन्यूसली बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट टेक लेगा, बट जो 2, 8 है ना, ये कंटिन्यूसली बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इसकी दोनों शेल्स जो है वो कंप्लीट है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ आपको, भाई साहब मेरा घर है, फॉर एग्जांपल मैं काम करता हूँ, मैं अपना घर जो है PG पे दे देता हूँ, ठीक है। अब मेरे घर में जो है 2 कमरे हैं, जब वो दोनों फिलअप होंगे ना, तो मुझे पता है, मुझे स्टेबिलिटी आ गई कि मेरे कमरे जो है दोनों बंद है, मैं अब किसी बंदे को नहीं लाऊंगा। अब मेरे घर में जो है 20 कमरे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ पहले मैं वो 2 कमरे लगाऊं, 2 कमरे में बंदे लाऊं जहाँ पे मैंने AC लगाया, क्योंकि वहाँ का खर्चा बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ मैं वहाँ पे बंदे ले आऊँ जहाँ पे हीटर लगा है, मतलब उसका भी खर्चा कंपेरेटिवली ज़्यादा है। उसके बाद अगर आते हैं बंदे, मैं उनको बाकी कमरे में ले जाने की कोशिश करूंगा। अगर अब मेरे पास 20 कमरे हैं, मेरे पास 13 ही बंदे आएंगे, तो मैं तब तक कोशिश करता रहूंगा ना जब तक ना मेरे पास 20 बंदे वापस आ जाए। या मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो 3 बंदे बाहर ही निकालूं, और मैं मेरे जो 10 बंदे हैं, मतलब जो एक सेट है मेरा, एक फ्लोर है फॉर एग्जांपल, मेरे एक फ्लोर पे 10 कमरे हैं, दूसरे फ्लोर पे 8, दूसरे फ्लोर पे 10 कमरे हैं, तो मैं चाहूँगा कि मेरा एक ही फ्लोर जो है ठीक रहे, मतलब एक ही फ्लोर में बंदे रहे, ताकि दूसरे फ्लोर की जो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सब कुछ चीज़ें मैं काट दूँ, फॉर ए मिनट कंसिडर करते हैं। इसी तरीके से हमारा जो एटम होता है ना, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी ही होती है। जब मेरे पास जो मेरे ऑर्बिटल्स होते हैं, जो एनर्जी लेवल्स जिस हिसाब से वो फिलअप होता है, उस हिसाब से मैं इलेक्ट्रॉन्स उनमें बढ़ता जा रहा हूँ। सो आई गेस दिस वॉज इट। हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की रिगार्डिंग मनी थिंग्स। वी डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द एटॉमिक नंबर, द मास नंबर, एंड मैनी अदर थिंग्स विच आई गेस विल बेनिफिट यू इंशाल्लाह। तो फॉर व्हाटसोएवर रीज़न, अगर आपको लगा है कि हमें चीज़ें समझ नहीं आई है, यू शुड ड्रॉप मी अ कमेंट नीचे, उसमें आप मुझे बता दोगे कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है, ये इस चीज़ से पंगा पड़ गया है। एंड आई गेस दिस वाज इट। हमने ये जो लेक्चर है अच्छी तरीके, हमने ये जो चैप्टर है अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। आई विल नॉट से एग्जैक्टली अच्छी तरीके से, बिकॉज देयर हैव बीन मैनी थिंग्स जिन पे बात करनी थी शायद से, एंड वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट दैट बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट। वी हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस इन बहुत शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, एज ऑफ ऑलरेडी दिसंबर इज हेयर, and we have to end up this whole before the end of January. So I guess अभी जो हमारा कोर्स थोड़ा हमें स्पीड अप करना है in coming months, in coming weeks we will be
गोइंग थोड़ा बहुत ज़्यादा फास्ट, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट क्या आपकी जो जो हमारी लेवल है और उसको थोड़ा अप करें हम, और वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स थोड़ा और ब्रॉडली, और वी विल ट्राई टू एडप्ट थिंग्स और अच्छी तरीके से, ताकि आपको चीज़ें जो है अच्छी तरीके से समझ आए, आपको थोड़ा एक अच्छा भी लेवल मिले, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव गॉन थ्रू दीज थिंग्स इन योर स्कूल या जहाँ पे भी आप पढ़ते थे. सो वी विल ट्राई टू ब्रश अप दोज थिंग्स, वी विल ट्राई टू ऐड ऑन थिंग्स जो आपने नहीं पढ़ी होगी शायद से वहाँ पे, या कॉम्पिटेटिव एज देने के लिए हम चीज़ें जो है इन कमिंग लेक्चर्स वी विल ट्राई टू ऐड ऑन ऑल दोज थिंग्स. बाकी आपके पास जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके पास जितने भी आपके दोस्त वगैरह है जो भी कभी क्लास 9th में पढ़ रहे हैं या 10th में पढ़ रहे हैं, काइंडली उनके साथ जो हमारा प्लेटफॉर्म शेयर करें, ताकि मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ जुड़ पाए एंड हम अपनी इस लर्निंग के प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहें. बाकी अगर आपको कोई समझ नहीं आई हो, किसी भी चीज़ में कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो, जस्ट कमेंट सेक्शन जो है आपका नीचे पड़ा हुआ है, व्हाट्स एवर कन्फ्यूजन आपको पढ़ाई के रिगार्डिंग लगता है या आपको लगता है कहीं पे भी कन्फ्यूजन है किसी भी चीज़ में, आप वहाँ पे हमें बोल दे. वी विल ट्राई टू एडप्ट दोज थिंग्स और उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे आपको. रेस्ट आई गेस इट वॉज इट. थैंक यू. हैव ए गुड टाइम हैड.